terms of what the company loses out by losing that individual, not to mention the chaos that it surrounds. And that's the cost which is always overlooked. So how does this impact people? It's very important that you also take into account that what is going on with the people who are working around such people. It causes an atmosphere of anxiety, depression. People physically get sick. They get up in the morning and they just do not feel like going to work. There's no motivation, inability to concentrate. They lose their sense of self-worth and confidence. And then, of course, there are financial costs that we just talked about. There's another study done which shows that 71% of respondents who experienced bullying at workplace dreaded going to work. And 46% of them claimed that it made them physically ill. So it is just a terrible thing for somebody to experience. And I'm saying this because a lot of you are in senior positions and maybe not by design but by coincidence are allowing this to happen around you. So this is just to raise your awareness. So what to do? We have talked about the definition and how does it take place and what does it cost. I don't like to give big lectures in terms of, how to survive a bully manager and what are the 10 things that must be done by any organizations. Every organization has policies. Every organization has values and ethos written in which they talk about teamwork and humility and all of those things. But at the same time, they look the other way when such behaviors are taking place within their companies. So I just focus on two things, which it all boils down to. Number one is you must talk about it within your company. So people must know that what is the unacceptable behavior. We joke around and we have come up with a terminology of no jerk rule. So, you can make your own rule. I'm sure that folks at Geo could be very creative with that. And then the other one is, what it really boils down to is the integrity of the top decision makers, that if they want to preserve the values of their company or not. That's what it all boils down to. You don't have to tolerate, you don't have to live with it, but it's all about the integrity of the top management. This ends my presentation. Thank you very much for your time. By our chief guest, Mr. Kamran Mikhail. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our chief guest, Mr. Kamran Mikhail. पहले तो मैं आज अलीज ह्यूमन रिसोर्स इंटरनेशनल के इस प्लेटफॉर्म पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है और इस चीज़ को हम हर सेक्टर में हम सराह भी रहे हैं कि इन इश्यूज पर ये फर्स्ट टाइम मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेमिनार का और इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है. तो मैं रियली इन्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी, और आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं. मैं समझता हूँ कि आप सब भी जहाँ जहाँ से आपको आज मदऊ किया गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करते हैं और जहाँ पर आप ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आपके जो अमली किरदार है वो बड़ा मुस्बत है, हम उसे भी अप्रिशिएट करते हैं. और मैं आज के इस टॉपिक की निस्बत से जो डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट के हवाले से है एट वर्क प्लेस, तो मैं ये समझता हूं कि आज जरूरत भी इस बात की है कि हम ऐसे सेमिनार्स, ऐसे प्रोग्राम्स करवाएं, उन्हें मुरतब दें, उन्हें ऐसे अमली जामा पहनाएं और आगाही के प्रोग्राम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. और उसमें सबसे बढ़कर अभी मुझसे पहले एक तो कुछ मैं देर से आया, मॉर्निंग में जो आपके स्पीकर्स थे मैं उनको नहीं सुन सका,
लेकिन सियाल साहब की बातों से हम मुस्तफीद हुए और मुदस्सर आकल साहब की प्रेजेंटेशन के बाद मैं समझता हूं कि ये बहुत ऐसी बातें हैं जिनको उन्होंने वाज़ेह तौर पर हमारे साथ डिस्कस किया है। तो सबसे बढ़कर मैं समझता हूं ये तमाम तर बातों का जो एक हल है वो क्या है, उसकी तरफ हम किस तरीके से उस डायरेक्शन में अपने आप को लेके चल सकते हैं, और वो है रवैयों में तब्दीली। जब तक हम रवैयों में तब्दीली नहीं लेके आएंगे तब तक हम किसी भी सेक्टर में, ख्वाह वो जेंडर के हवाले से हो, ख्वाह वो किसी भी डिप्रेस्ड कम्युनिटी के हवाले से हो, हम उसमें तब्दीली रूनुमा नहीं कर सकते। तो बात सिर्फ ये है कि जब हम ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और अपनी अपनी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ सोसाइटी से जब हम ताल्लुक रखने वाले लोग यहां पर इकट्ठे हैं, हम अपने अपने ख्यालात से, अपनी आराज से, अपनी ओपिनियन से एक दूसरे को हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये आप लोग ही हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, और आपकी मुशावरत से ही गवर्नमेंट लेवल पे भी हम कुछ करने के काबिल होते हैं। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में बात करने जा रहा हूं कि फेडरल लेवल पे भी और पंजाब लेवल पे भी हमने ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री जो है, ये डिपार्टमेंट जो है, ये एस्टेब्लिश किया है। इससे पहले इट वाज द विंग एंड इट वाज वर्किंग विद द लॉ डिपार्टमेंट। अब ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो अभी ये एक आगाज सफर है। अभी दूसरे सूबों का ये हाल है कि वहां पर अब तक ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर ही नहीं है, मिनिस्ट्री का वजूद ही मौजूद नहीं है। तो जब हम ये बात किसी को बावर ही नहीं करवा सकते कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस माशरे के हवाले से क्या है, तब तक मैं समझता हूं ये तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली जहनों से, रवैयों से, आपके एटीट्यूड से और आपके कैरेक्टर से आने से ही ये मैं समझता हूं आज की नशिस्त जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। और आज हमारे इस नशिस्त का मैसेज भी यही डेवलप होकर आगे जाना चाहिए कि हम सब मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं और हमने उन लोगों के लिए काम करना है जो डिप्रेस्ड हैं और जिनका ये राइट बनता है कि उनको उनके कम से कम फंडामेंटल राइट्स उन तक प्रोवाइड किए जा सकें। तो इसमें आप लोग सबसे आगे पहली वो कहते सफों में शामिल हैं। उसके बाद मीडिया का किरदार जो है कि आप ऐसे हालात से आपके साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। और मैं एक दो चीजें बस छोटी सी डिस्कस करके इसको वाइंड अप करूंगा। हम क्योंकि मेरे पास वुमेन डेवलपमेंट पंजाब का चार्ज भी है, ये मेरे पास एडिशनल चार्ज है और हम इसमें जेंडर रिफॉर्म एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पंजाब में इस पर काम हो रहा है उसमें आप देखें कि हम तकरीबन ये एक डिस्क्रिमिनेशन के इस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि हम उन तबकात को हम उनको ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि आप मुआशरे में आपका वही एक रोल भी है, मकाम भी है जिसके लिए हम सब ने तगोदौ करनी है। आज दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है लेकिन हमारे मुआशरे का ये हाल है कि हम तक अब तक वो अभी बात हो रही थी कि पत्थरों के दौर में रह रहे हैं और वही सोच अपनाए हुए हैं। तो बात ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि हम अपनी खवातीन को जो हमारे साथ पढ़ लिख कर इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल में अपना अमली किरदार अदा करने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि आज बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, अब आप असेंबलियों में ले लें, हमारी एमपीएज और एमएनएज आज पार्लियामेंटेरियन हैं, आज वो अमली तौर पर खवातीन के राइट्स के लिए वहां पे तगोदौ कर रही हैं। तो जब तक हम खवातीन को राइट्स नहीं उनके देंगे, उनको उनका जायज मकाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका राइट है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक ये रवैयों में तब्दीली नहीं आएगी। इसके लिए हम सबको अमली किरदार करना पड़ेगा, मुस्बत और जामे किरदार अदा करना पड़ेगा। यहां पर मैं माइनॉरिटीज की बात भी करना चाहता हूं। मेरे पास माइनॉरिटीज की भी मिनिस्ट्री है। तो मैं ये समझता हूं कुछ अरसा पहले मैंने जेलों के विजिट शुरू किए। जेल